रोड का एक साइड पूरा बिल्कुल खाली है, दूसरा साइड से आना जाना हो रहा है। अजमेर से? अच्छा, खुद अजमेर का रहने वाला होगा? हाँ जी। तो टैलेंट देखो, ছোট্ট একটা বাচ্চা দড়ি পরে ছোট্ট মেয়ে, কত বয়স? তো 4 বছর। मैडम आपका? रिया। अच्छा, आप मतलब हस्बैंड वाइफ हो? आप लोग क्या मतलब घूमने आया क्या इधर? कथा सुनने के लिए आया। ओके, थैंक यू। राजस्थाने আসলে উট দেখা যাবে না এমনটা কোনো কথাই নেই। क्या नाम है सर आपका? बलदेव राम। बलदेव, कहाँ से आए हो आप? हम आए करकेड़ी से। करकेटी से। क्या केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी जी। फोटो बोल रहे? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी जी। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি এসেছিলাম দীর্ঘ 20 বছর পর আজমিরে বেড়াতে। তো আজমিরের পাশে ছোট্ট একটা শহর পুষ্কার রাজ, এখানেই কিন্তু রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের বাড়ি ছিল। তো এখানে আমি আসার পরে শুনলাম ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর কথা হবে 3 দিন। তো আজকে তার দ্বিতীয় দিন। তো আমিও আসলাম বেড়াতে এখানে। তো এর আগে আমি অনেক টিভিতে মোবাইলে দেখেছি, আজকে ডাইরেক্ট দেখবো সরাসরি, সেই জন্য এসেছি আর আপনাদেরকেও দেখাবো। তো ভিডিওটি পুরোটা দেখতে থাকো। আর এখানে আসার পরে এত ভিড়, তো আমি ডাইরেক্ট দেখতেই পারলাম না, শুধু এলসিডি লাগানো সামনে। আর এখানে যেহেতু মরুভূমি, তো রোদ, প্রচণ্ড পরিমাণে রোদ, এই রোদের মধ্যে আমি ঘুরছি একা। তো অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরেও আমি দেখতে পেলাম না, কারণ এত পরিমাণে ভিড়। আর সামনে সব অনেক বড় বড় এলসিডি লাগানো আছে, সেই কারণে কিন্তু ডাইরেক্ট আপনি দেখতে পাবেন না। তো এখানে আসার থেকে আমার মনে হয় যে বাড়িতে টিভিতে দেখাই ভালো, কারণ ডাইরেক্ট যদি নাই দেখা যায় একটা মানুষের। তো সব ডিসপ্লে লাগানো আছে, এই ডিসপ্লেই দেখতে হচ্ছে। तो अभी जो है ना रास्ता का एक साइड खाली किया, दूसरा साइड से आना जाना कर रहे हैं। लगता है कोई बैरिकेड लगानो আছে আর সিকিউরিটি स्पेशल बंदा आने वाला है शायद, इसलिए तो আমি रोड का एक साइड पूरा बिल्कुल खाली है, दूसरा साइड से आना जाना हो रहा है। देखिए एक ही साइड से आ रहा है, एक ही साइड से आना जाना हो रहा है। রাস্তার এক সাইড থেকে আসা যাওয়া হচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো একটা স্পেশাল মানুষ হয়তো আসতে পারে। পুলিশটা কিন্তু সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। करोड़ रुपए हमने लिया है, जिससे उन मंदिरों का पहले चरण में हम काम कर सके, जो प्रमुख मंदिर हैं। मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी दिया है, लगातार हम काम कर रहे हैं। तो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं, तो जैसे ही जाने लगे वैसे ही गोविंद देव जी मंदिर से बोले, व्यास जी भक्त नामदेव तक का चरित्र सुना दिया, इसके आगे की कथा सुनाई जाए। इस कथा की घटना का आशय हम कहना चाह रहे हैं, यदि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पक्का। ওটা হচ্ছে সাবিত্রী পাহাড়, ওই যে ঠিক আঙুলি মাথায়, ওটা হচ্ছে সাবিত্রী পাহাড়। আর ওর পাশেই কিন্তু রোপ আছে, রোপ হয়তো দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরায়। আর ঠিক সাবিত্রী পাহাড়ের পাশেই কিন্তু প্রচণ্ড রোদের জন্য এই সাইডে দেখা যাচ্ছে না, তো অনেক ভিড়, সেই কারণে চলে যাচ্ছি আমি। প্রচুর ভিড় আর রোদ, প্রচণ্ড রোদ, এত পরিমাণে ভিড় যে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে তো দেখাই গেল না, শুধু এলসিডিতে দেখা গেল। ও যেখানে বসে আছে সেইখানে ডাইরেক্ট দেখতে গেলে অনেক আগে সকালবেলা আসতে হবে, এসে বসে থাকতে হবে, তবেই দেখা যাবে। ওনার প্রোগ্রাম ছিল রাজস্থান আজমিরের পুষ্কার শহরে 3 দিনের কথা। আজকে তার দ্বিতীয় দিন, আর দ্বিতীয় দিনে আমি আসলাম এখানে। চারি সাইডে দেখো দোকান, একটা মেলা, রীতিমতো একটা মেলা বসে গেছে। সমস্ত রকমের খাবার দোকান কিন্তু এখানে পাওয়া যাবে। আর বেশি কিন্তু রাজস্থানী মহিলা, রাজস্থানী কালচার। এই হচ্ছে উট, উট কিন্তু এখানে শুয়ে আছে, উট এখানে শুয়ে আছে। আর রাজস্থানে আসলে উট দেখা যাবে না এমনটা কোনো কথাই নেই। আমার পিছনেই আছে উট, রাজস্থানের মরুভূমির জাহাজ যাকে বলা হয়।
যে উট, সে আজকে অনেক কাছে থেকে উটকে দেখতে পেলাম আর তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। সিয়াচ উট, আর ওই সাইডেও আছে কিন্তু ঘোড়া আছে, তার পাশে সাবিত্রী পাহাড়, এই যে উট শুয়ে আছে, আর উটের পাশে ঠিক আমি, প্রচণ্ড ভিড় রোদ্রে। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा कमल नाम है जी। कमल जी, तो कहाँ से आए हो आप? हाँ, हम अजमेर से आए हैं। अजमेर से? फायसागर से। अच्छा, खुद अजमेर का रहने वाला होगा? हाँ जी। क्या नाम है मैडम आपका? रिया रिया। अच्छा, आप मतलब हस्बैंड वाइफ हो? जी। आप लोग क्या मतलब कि घूमने आया क्या इधर? हाँ यार कथा सुनने आए। कथा सुनने के लिए आया? हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? बलदेव राम। बलदेव, कहाँ से आए हो आप? हम आए करकेड़ी से। करकेटी से। क्या यहाँ पे क्या घूमने के लिए आए हो क्या? नहीं घूमने के लिए नहीं है, बाबा के दर्शन करने आए थे। अच्छा, दर्शन कर लिए। दर्शन हो गया क्या? हो गया। अच्छा अच्छा, भीड़ बहुत थी तो थोड़ा मुश्किल से हुआ, दूर से हुआ, ओके। लेकिन हो गया। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था तो धीरेन्द्र शास्त्री उनका कथा रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे जो ये गाड़ी जो है ना, ये खास करके रेत पे चलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो मिट्टी, ये जो रेत है ना, यहाँ पे चलता है गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे है ना बहुत बार ज़्यादातर फॉरेन कंट्री का आता है यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को एक भाई मिली है, तो भाई से अगर कोई अगर यहाँ पे आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ये भी लेके आप घूम सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट ना भाई का मुँह से कुछ सुनना चाहता हूँ। तो क्या नाम है सर आपका? मुकेश नाम है। मुकेश नाम है। तो आप मतलब यहाँ पे क्या करते हो आप यहाँ पे? हम सर ये गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास ऊँट है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है हमारे पास। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर कोई अगर ये घूमने चाहता है इसमें, तो मतलब इसका प्राइस क्या है? मतलब कितना टाइम है, कितना? 200 रुपये मात्र प्राइस है। 200 रुपये में हाँ, पर पर्सन। पर पर्सन? राइड कराते हैं सर, मतलब एडवेंचर वाले रास्ते मतलब ऐसे ट्रैक चढ़ाते उतारते मस्त। जी। अच्छा, कितना टाइम के लिए? टाइम कितना टाइम रहता तो टाइम का कोई इशू नहीं है। है? अच्छा, हाँ, 2 घंटे के लिए फिर मैक्सिमम 30 मिनट, आधा घंटा। आधा घंटा। अच्छा, तो इसके साथ साथ और क्या है? मतलब वो जो मैंने जो देखा, ऊँट देखा, हाँ, उसमें भी ऊँट है और घोड़ा है, ऊँट बग्गी है, तो कैमल कार्ड है। अगर कोई अगर यहाँ पे आके अगर इस भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भाई का मुंह से फ़ोन नंबर ले लो, ताकि मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और डायरेक्ट भाई का मुंह से सुन लो। मेरा नंबर है 7023779571। तो भाई का नंबर है, आप लोग डायरेक्टली सुनिए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम रामफूल है। रामफूल है। अभी मतलब इसी ग्रुप का है? नहीं, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा, अभी तो घूमने के लिए आया हो। कहाँ से आए हो आप? मैं अभी बुधवाड़ा से आया हूँ। बुधवाड़ा से आया हूँ। अच्छा भाई, बुधवाड़ा से आया हो, बुधवाड़ा से घूमने के लिए शास्त्री का कथा सुनने के लिए आया है। भाई क्या नाम है सर? राकेश वैष्णव नाम है। आप भी घूमने के लिए आए हो क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। एंजॉय करने के लिए। कहाँ से आए हो आप? हमें बुधवाड़ा से यहीं लोकल ही है। अच्छा, तो ये आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा? बहुत मस्त है, मजा आया। ठीक है, तो आप लोग ने डायरेक्टली सुन लिया भाई का मुंह से, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। खास करके अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री आया है ना, इस बात का नहीं है, बाकी के टाइम भी आप आ सकते हो, एनी टाइम आ सकते हो यहाँ पे। और बाकी यहाँ का मौसम भी बढ़िया है। फिर उसके बाद देखते हो मेरा जो पहाड़ जो दिख रहा है ना, वो सावित्री है, वहाँ पे मंदिर है, सावित्री माता जी का मंदिर है। और इसका दूसरा एक मंदिर है वहाँ पे, वो मैं बाद में जाके दिखाऊंगा, उसका नाम है गायत्री माता जी का मंदिर है। आज कथा की संध्या वेला की आरती में केवल हमारे मुख्य यजमान श्री गौरी सतगुरु शर्मा जी, पवन जी एवं কত ট্যালেন্ট দেখো, ছোট্ট একটা বাচ্চা দড়ি পরে খেলা করছে। ছোট্ট মেয়ে, কত বয়স? হয়তো 4 বছর, 5 থেকে 6 বছর বয়স মেয়েটার। এটা হচ্ছে ব্রহ্মাজি কা মন্দির। ব্রহ্মাজি কা মন্দির, একটা তাঁবু লাগানো আছে সামনে, এই জন্য পুরোটা তুলতে পারলাম না। পুরোটা তুলতে গেলে ভিতরে যেতে হবে আমার, এই জন্য আমার হাতে খুবই কম সময় ছিল, যা হয়নি। এই জন্য নেক্সট টাইম যদি কখন আসি অবশ্যই দেখাবো ব্রহ্মাজি কা মন্দির। হচ্ছে ইংরেজ মার্কেট, এগুলো হচ্ছে রাজস্থানের চুড়ি। অনেক পুরনো একটা ইংরেজ মার্কেট, কারণ এখানে ইংরেজরা অর্থাৎ ফরেনাররা বেশি আসা যাওয়া করে এখানে, এই জন্য এই বাজারটার নাম হয়েছে ইংরেজ বাজার। যতটা ড্রেস দেখার সব কিন্তু বিদেশি পোশাক আশাক,
ইংরেজদের জন্যই বানানো। অবশেষে সেই পুষ্কার ঘাটে চলে আসলাম। কত বললে পুষ্কর ঘাট। কথা খুব কম বলাই ভালো, কারণ বর্তমানে সমস্ত যেখানে যত ধর্ম জায়গা আছে, ধর্ম অনুষ্ঠান বেশিরভাগই সব ব্যবসায়ী পরিণত হয়েছে, সে যে ধর্মের হোক না কেন। আর এখানে ব্রাহ্মণ যারা আছে তাদের কিন্তু অনেক দাপট তাদের। বেরিয়ে চলে যাই, ভাষণ দিচ্ছি। ফরেনাররাও কিন্তু খুবই আসে এখানে। এবার আমি সোজা বেরিয়ে চলে যাব, এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাব, কারণ এখানকার ব্রাহ্মণরা কিন্তু খুব অনেক বদমাইশ, বেশিরভাগই বদমাইশ, ভালোও আছে আর খারাপও আছে। সমস্ত জায়গায়, সমস্ত ধর্মস্থান জায়গায় কিন্তু সমস্ত ব্যবসার ভাগটা বেশি হয়ে গেছে। কারণ এখানে তোমার ব্রাহ্মণ ধরতে হবে, পুজো করতে হবে, ফুল নিতে হবে, এগুলো নিতেই হবে জবরদস্তি, ঠিক আছে। তো আমি এখানে জুতো রেখে দিয়েছিলাম, জুতো নিয়ে গেট দিয়ে চলে বেরিয়ে। তো এখন চলে আসলাম আজমির, দেখতে পাচ্ছ আজমির স্টেশন আমার পেছনে, আর এখান থেকে যাব আমি বোম্বেতে। তো আমি এক রাত আর একদিন থেকে চলে আসলাম বোম্বেতে। ভিডিওটি কেমন লাগলো আশা করি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন।